Hello friends, welcome to your own Leaps All in One channel. And today is my daughter's birthday. She's super excited. She's turning 5 today. She's off to school at the moment. She has opened her 2 of presents and she was really happy. Rest of the presents she will open in the evening. I'm gonna bring some party bags and the cake to her school. I just bringing the store-bought cake for the school. And she's so excited for that. She wants to show her outfit to all her friends which she choose for today. And we thought we are not gonna do any kind of party tonight, but there are some of friends and I'm so blessed to have them. If you invite or not, they just come. So 2 of my friends, they called me last night and they said they wanna come to wish her. Then I thought, why should not have the dinner together? I'm not making that so many things and not so fancy. I'm just making the simple dinner which my daughter loves. I'm making bhandare wale aloo ki sabji, or you can call them Bombay potatoes. With that I'm making gujett's bharta, zucchini ka bharta or zucchini bhujia, whatever you say. Bundi ka raita, puri or tur dal, arhar ki dal, some jeera rice and suji ka halwa. My daughter loves suji ka halwa because she had the milk allergy before and she recently outgrown of it. So she don't have too much taste of the dairy product or any kind of Indian sweets. 2 years ago she passed the baked milk challenge, so she was allowed to have butter and ghee. So I introduced suji ka halwa to her. So I'm just gonna make suji ka halwa for her, so she will be very happy to see everything what she likes. And rest of them I'm gonna bake a princess cake for her, and today is the first time when she will taste the cake with the cream. She already eaten the cake but not any kind of frosting cake, so I'm gonna make the fresh cream cake for her. I have done all the preparation like chopping and making the puree. Icing is already done. I have whipped the cream. So most of the things are done and it's 10:30 now, and by 2:15 I'll go and pick my daughter from the school. So I just have less than 4 hours to finish everything. So let's quickly go to the kitchen and I'll show you the ingredients. So here are most of the ingredients which I'm gonna use cooking today. Here I have taken 4 big size zucchini courgettes and I have cut them in like this one, half moon shape. And this is the puree of 5 tomatoes, 3 green chilies and 2-inch ginger. I'm gonna use some in the Bombay potatoes and some for my dal. And here is the 3 medium-sized tomatoes. I have cut them finely like that. And this is ginger cube and this is garlic cube, and there is 2 green chili finely chopped. Now this one I would need for the zucchini bharta. And these are the onion, 2 medium sized. I have cut them in the julienne as well. They are for the zucchini bharta. And here is 3 medium size onion which I have chopped finely, and I'm gonna use some of them in the dal and some of them in the Bombay potatoes. And here I have soaked 2 cup of rice for the jeera rice, and here I have soaked 1 cup of dal for around 1 hour. Always soak your dal or wash them thoroughly because there is always polishing and the color over there. Same with the rice, always soak your rice before and then thoroughly wash them. So I have dal is for around 1 hour, half an hour, I think half an hour to 1 hour. I have soaked it and I have washed it properly. And here I have taken more than half kg of the potatoes. I have boiled them and I have peeled them. So they are for the Bombay potatoes. And here is the chocolate cake mix, ready one, which I'm gonna use to bake the cake. And this is the half kg of fresh cream which I have whipped to make the icing. I have added 2 tablespoons of sugar into this.
and 1 tablespoon of vanilla extract. So it will go into the fridge. I just brought it here to show you. So this is for the icing, and these are the eggs for the cake as well. So some other ingredients like cumin, coriander, turmeric I would need, and I will show you while I will cook. So these are the main one which I have done here. I'll put the icing in the fridge, and when my cake will be done, then I'm gonna take it out. सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग नाउ। सबसे पहले मैं केक बना रही हूँ। मैंने ये बैटर तैयार करना है। इसमें मैंने एग्स, ऑयल और पानी डाल लिया है। पैक पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने वो यूज़ किए हैं, और इसके बाद मैं इसको हल्का सा मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसको स्विच ऑन करके अच्छे से विस्क कर लूँगी। शुरू में मैंने इसलिए नहीं चलाया था विस्कर क्योंकि ये बहुत स्प्लश करता है, तो हल्का सा मिक्स करने के बाद आप इलेक्ट्रिक विस्कर यूज़ करें। आप चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं, मेरे पास विस्कर है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और इसको 2 से 3 मिनट तक आप अच्छे से बीट कर लें ताकि ये बहुत फ्लफ़ी और मॉइस्ट केक बने। और केक टिन भी मैंने लाइन करके पहले ही रखा हुआ है। अवन मैंने प्री हीट पर लगा दिया था अराउंड 120 डिग्री। जो भी पैक पर इंस्ट्रक्शन आप उसके अकॉर्डिंग प्री हीट कर लें। और फिर मैंने बैटर ये केक टिन में डाला है, और इसको मैं हल्का सा टैप कर लूँगी ताकि एयर बबल सारे निकल जाएं। और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे पकने में। इसको मैं अवन में रख दूँगी अब। और अब हम बनाते हैं अपनी सब्जियां। मैंने 3 पैन रख दिए हैं गैस स्टोव पर। सब में मैंने ऑयल डाला है थोड़ा थोड़ा। प्रेशर कुकर मैंने दाल के लिए लिया है। ऑयल गर्म होते ही मैंने क्यूमिन सीड डाल दिए हैं, और राई डाली है मैंने दाल के लिए। और इसके बाद जैसे ये क्रैकल हों उसके बाद मैं ये जूलियन वाली अनियंस डाल दूँगी कुजैत जुकीनी की सब्ज़ी के लिए। और जो चॉप्ड अनियन है आधी मैंने दाल के लिए डाल दी हैं और आधी मैंने पटेटोज़ के लिए डाली हैं। सो आई एम मल्टीटास्किंग हियर। एंड इसके बाद आप इसको अच्छे से चलाएं। ये प्याज आपकी जलनी नहीं चाहिए, और इनको लिटिल गोल्डन ब्राउन होने तक आप भून लीजिए। और ये थोड़े से करी लीव्स हैं जो मैंने दाल में डाल दिए हैं। उसके बाद आप इसको चला दीजिए। प्याज साइड से कई बार ज़्यादा हो जाती है, बीच से रह जाती है, तो बीच बीच में चलाते रहें। इधर ये मेरे पटेटोज़ हैं बॉयल्ड, जिनको मैं अब हाथ से ही तोड़ रही हूँ। इनसे बहुत अच्छी थिक ग्रेवी तैयार होती है, आपको किसी और थिकनर की ज़रूरत नहीं होती है। जो भंडारे वाले आलू होते हैं उसमें प्याज का यूज़ नहीं होता है, तो अगर सेम रेसिपी आप फॉलो कर रहे हैं तो बस प्याज ना यूज़ करें, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। बीच बीच में प्याज अपनी चलाते रहें, ऐसा ना हो कि वो जल जाए। प्याज अगर जली हुई होगी तो आपकी ग्रेवी का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो आपकी सारी सब्जियों का दरोमदार जो होता है वो प्याज के ऊपर होता है कि वो किस तरह से भुनी है, तो वो जलनी नहीं चाहिए। और इधर ये आलू मेरे सारे अच्छे से तैयार हो गए हैं, और अब मैं प्याज को भी चला दूंगी सबको एक बार। अब मैं हीट जो है वो सबकी मीडियम पे करूँगी क्योंकि प्याज अच्छे से भुन गई है। मीडियम क्या सिम पर कर दी है बिल्कुल। और इसके बाद मैं कोरिएंडर पाउडर डालूँगी सब में अराउंड 1.5 टीस्पून के करीब, और उसको अच्छे से भून लेंगे अराउंड 30 सेकंड के लिए। और इसके बाद हम इसमें टमाटोज़ ऐड करना शुरू करेंगे। तो मीडियम हीट पर मैं टमाटोज़ जो चॉप किए थे वो जुकीनी की सब्ज़ी में डाल दिए हैं, उसको चला दें। और जो टमाटो प्योरी है आधी मैंने आलू के लिए यूज़ की है और आधी मैंने दाल के लिए यूज़ की है। इसके बाद हमें टमाटोज़ को तब तक पकाना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और ये मशी ना हो जाए। जुकीनी की सब्ज़ी के लिए हीट को आप हाई कर दें और इन सब को आप कवर कर दें। सो अराउंड 2-3 मिनट में ये सारे डन हो जाएंगे। बीच बीच में चलाना ना भूलें, हल्का हल्का इनको आप चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे और सारा ही ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ज़्यादा ऑयल मैंने डाला भी नहीं है यहाँ पर। और अब मैं इसको एक बार चला रही हूँ। ये देखिए ये टमाटो बिल्कुल ही खुश्क हो गया है। इसमें मैंने रेड चिली पाउडर और टर्मरिक डाल दिया है और सॉल्ट भी डाल दिया है एज़ पर द टेस्ट। और इसको आप अच्छे से चला दें। और अब मैं अपनी दाल ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसको एक बार चला दें दाल डालने के बाद। और मैंने अराउंड
3 कप के करीब पानी लिया है इस दाल में। बच्चों के लिए दाल अगर आपके बफ़े में होगी तो वो ज़रूर खाएंगे और आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। दाल चावल एक ऑल टाइम हिट फेवरेट है बच्चों के लिए, तो किसी भी गेट टुगेदर में आप प्लीज़ इसे ज़रूर बनाएं तो बच्चों की तरफ से बेफिक्री होगी। फिर आप इसमें जुकीनी की सब्ज़ी में सॉल्ट डाल दें, टमाटो जल्दी गल जाएंगे, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर एज़ पर योर टेस्ट, और इसको अच्छे से भून लें। टमाटोज़ ऑलमोस्ट मशी हो गए हैं। फिर इसको आप चमचे से थोड़ा सा और मैश कर लें। और अब मैं इसमें अपनी ये जुकीनी ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर दें थोड़ा सा आप, और हीट को मीडियम ही रहने दें। ये खुद अपना पानी रिलीज़ करेगा और ये अपने पानी में खुद ही पकता रहेगा। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर मीडियम हीट पर ये धीरे धीरे पकता रहेगा। उधर मेरे टमाटोज़ आलू की सब्ज़ी के लिए भी तैयार है। रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर मैंने 1 टीस्पून उसमें डाल दिया है। सॉल्ट डाल रही हूँ एज़ पर द टेस्ट, और उसको फिर एक बार अच्छे से मिला लें। और ये मैंगो पाउडर है, अमचूर पाउडर, जो मैंने 2 टीस्पून डाला है। इससे बहुत अच्छा खट्टापन आ जाता है, तो प्लीज़ यूज़ इट। इसको आप 30 सेकंड के करीब भून लें। और फिर मैंने इसमें अपने ये सारे पटेटोज़ ऐड कर दिए हैं, और अराउंड 2 कप्स के करीब मैं इसमें पानी यूज़ कर रही हूँ। मैंने सेम बोल को रिंस किया है ताकि थोड़ा भी पटेटो वेस्ट ना जाए। और इसके बाद आप इसको अच्छे से हिला दें एक बार। अगर लगेगा कि ये थिक हो रहा है तो मैं थोड़ा पानी बाद में ऐड कर दूँगी, बट एट द मोमेंट दे आर लुकिंग क्वाइट फाइन टू मी। उसके बाद मैं इसको कवर करके और मैं इसको पका दूँगी, एंड आई एम क्लीनिंग एज आई गो। जुकीनी को बीच में चलाना ना भूलें, क्योंकि जब तक ये पानी रिलीज़ नहीं करेगा तब तक डर रहता है कि ये लग ना जाए। तो मीडियम हीट पर आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहें। और अब हम वेट करेंगे। और जब तक मेरी सब्जियां तैयार हो रही थी मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। और उधर एक विसल आ गई है प्रेशर कुकर में, और अब मैं हीट को सिम पे कर दूंगी। और इधर मेरा केक भी ऑलमोस्ट तैयार होने लग रहा है। और अब हम जुकीनी चेक कर लेते हैं। आलू को भी एक बार चला दें, क्योंकि जब तक बॉयल नहीं आता वो नीचे बैठ जाते हैं। और जुकीनी चला दें। थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगा है, बट अभी इसको टाइम लगेगा पकने में, तो चलाते रहें बीच बीच में। उधर दाल मेरी सिम पर है फॉर अराउंड 2-3 मिनट्स, और अब इसको मैं हाई हीट पर करके एक और विसल दिलवाऊंगी। और जो कुछ छींटे पड़े थे उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। और उधर ये विसल आ गई है। अब मैं अपनी गैस को स्विच ऑफ कर दूँगी और दाल मेरी तैयार है। जैसे ही प्रेशर डाउन होगा आई विल ओपन इट। इधर मैं पानी बॉईल कर रही हूँ केटल में राइस के लिए, जीरा राइस हम बना रहे हैं। और इधर मेरे आलू की सब्ज़ी में भी अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसको सिम पे करके अराउंड 5 to 7 मिनट्स पकने दूँगी। इधर जुकीनी भी अच्छे से पक गई है, इसको आप चमचे से तोड़ कर देख लें। और इसके बाद इसे फिर ढक दें और बिल्कुल सिम पर अब इसको 5 मिनट और पकाना है। अब मैं पटेटो मैशर से इसको हल्का सा मैश करूँगी। बहुत ज़्यादा ये मैश नहीं होती है क्योंकि रेशे होते हैं इसमें। और ये मैंने गरम मसाला डाल दिया है इस स्टेज पर इस पर। और इसको आप हल्का सा जितना हो सके जिस हद तक आप इसको मैश कर दें, उससे बहुत ही थिक आपकी ये भुजिया बनके तैयार होती है। बहुत टेस्टी लगती है। और इसके बाद आप हीट को हाई करके जो ये पानी निकला है इस पानी को सुखा लें, और जैसे ही पानी सूखेगा ये हमारी तैयार होगी। और आलू में भी अच्छे से बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें भी थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। गरम मसाला हमेशा लास्ट में डालें, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और भुजिया भी मेरी बिल्कुल तैयार है। पानी भी ऑलमोस्ट इसका ड्राई हो चुका है।
चलाते रहें इसको। और ये देखिए बिल्कुल खुश्क हमारी भुजिया तैयार है, ऑयल सेपरेट हो गया है। हीट मैंने स्विच ऑफ कर दी है और मेरी तीनों सब्जियां तैयार हैं। केक भी मेरा डन है। अब मैं राइस कुकर में राइस डाल दूँगी और उसमें अब मैं पानी डाल दूँगी। तो जितना आपका राइस होता है उससे दुगना आपको पानी डालना होता है राइस कुकर में। और पानी मैंने इसमें डाल के अब मैं इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी। ये जीरे का तड़का है, ऑयल, जीरा और बे लीफ मैंने डाला है इसमें। इसको इसके ऊपर आप डाल दें तो बहुत अच्छा जीरा राइस आपका तैयार होगा। और जैसे ही ये पकेगा आपका राइस कुकर खुद से स्विच ऑफ हो जाएगा, दम पे चला जाएगा। फिर एक बार आप फ्लफ़ कर दें और आपका जीरा राइस परफेक्टली तैयार हो जाएगा। इधर मेरी दाल तैयार है, सब्जी तैयार है, केक को मैंने बीच से काट दिया है, ठंडा होने पर आइसिंग करूँगी। चावल मेरा रेडी है और उधर मेरी भुजिया भी रेडी और क्लीन किचन मेरी चारों तरफ। तो लगा भी नहीं कितना कुछ बनाया है। और अब मैं अपना केक बनाना शुरू करती हूँ। इधर मैंने ये जो आइसिंग है ये बीच में लगाई है थोड़ी सी, और इसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरा पार्ट जो है वो रख दूँगी। आई एम नॉट द प्रोफेशनल बेकर, सो आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ दैम। मैं बस कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को मेरे हाथ का केक खाना था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग। सो अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आई एम नॉट दैट मच प्रोफेशनल। काम चला लेते हैं बस थोड़ा बहुत। और उसके बाद आप ये आइसिंग को चारों तरफ लगा दें अच्छे से, जितना हो सके स्मूथ करें। और ये चारों तरफ मैंने आइसिंग लगा दी है। फिर मैंने ये आइसक्रीम वाले जो कोन्स होते हैं ये मैंने लिए हैं टावर्स बनाने के लिए, और इनके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी आइसिंग लगा रही हूँ। और फिर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी। ये स्टार्स वाला है तो इससे बहुत अच्छा लुक आता है। और मैं इसको हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये बार बार ना झड़ें। और मैं हर कोने पे केक के इनको लगा दूँगी। थोड़ी सी आइसिंग इसमें अंदर लगा दें ताकि ये चिपक जाए, और इस तरह मैं इसमें फिट कर दूँगी। इस तरह मैं चारों कोनों पे लगाकर, और ये एक तरह से कासल की तरह बन जाएगा। आई एम थिंकिंग सो, आई डोंट नो कि आप लोगों को ये कैसा लगेगा, बट आई एम थिंकिंग कि हाँ ये थोड़ा कासल टाइप लगे और मेरी बेटी खुश हो जाए बस इसको देख के। और फिर अब मैंने डिफरेंट कलर की आइसिंग, उसी आइसिंग में से मैंने कलर डाल के आइसिंग तैयार की है। और अब मैं ये थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर रही हूँ कोन की हेल्प से। ये मैंने फ्लावर शेप का लिया है यहाँ पर नोज़ल, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ केक। थोड़े से मैंने ईडेबल फ्लावर्स भी लगाए हैं जो मैंने अपने शॉपिंग हॉल में आपको दिखाए थे। आपने नहीं चेक किया तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये मैंने डॉल्स भी रख दी हैं। आई होप मेरी बेटी को पसंद आए। सो केक रेडी है, बस अब शाम को हम इसको काटेंगे। एंड आई विल टेक यू थ्रू ऑल द व्लॉग, जैसे जैसे हम लोग करेंगे I'll show you that. This is the cake I got for the school, and now I'm off to school to pick her up. Cameras and any kind of mobiles are not allowed in the school, so I'm not sure if they will allow me to take any kind of picture or not. If they will allow me, then I will definitely share here. If not, then I'm really sorry about that. But yeah, I will show you the cake cutting ceremony in the evening. And it is 6 o'clock. My dough is ready. I just kneaded it with little bit carom seeds, ajwain and little bit of salt, and I took around 2.5 cup of wheat flour here. And my salad is also ready, and here I have soaked my bundi with little bit of salt and the cayenne pepper. If you want, you can use the red chili powder. And this is for my raita. When they will be puffed up, then I will add the yogurt into this. So everything is just done. I just need to make the puris. When the guest will come, I'll start making them. Birthday to you. Happy birthday, dear you.
birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nini. Happy birthday to you. लेके आ अब हमारे फरीदा है तो इसका तो करना पड़ता अब देखो भाई कौन भी है अच्छा तो you have won your prize. मैं देख के ही कर रही हूँ कि सबका नंबर है। Nadia, come here, come here. Hey everyone, party is almost over. Everyone has gone and the birthday girl is about to sleep now as well. She enjoyed really too much. She danced, they sang and plenty of things. They really had a gala time today. And now I'm just about to end this vlog. So tired. It's been whole day. I'm on my toes. And now really want to have a really good sleep. You all guys take care. Thank you so much for all your support. I hope you like this video. If you like it, please give me a big thumbs up. Don't forget to share, comment and subscribe. It's free. And let's meet again on your own Deep Solid One channel. Thank you so much. Bye bye. Say bye. Bye. I like that. Bye. Hello. Welcome to Deep Solid One channel. But today it's been a whole day but the party has been a long time and I got 2 trophies. So let's begin this project. Bye bye. Hello, my name is Ratty and today we're doing Deep Solid One channel. But I don't think these Shopkins can get opened right now. But let's get drawing and sewing the dresses. Oops, sorry. I'm a little bit like fancy. Thank you. Bye bye.